أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوں آج ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آج ہم سبق نمبر 19 زائد الف کے بارے میں پڑھیں گے کہ زائد الف کیا ہوتا ہے، یہ کب پڑھنا چاہیے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے علم میں مزید اضافہ کریں گے۔ تو سبق کی طرف آنے سے پہلے سبق کا آغاز ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ کریں گے۔ دعا کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گی کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ انشاءاللہ عز و جل کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کے لیے ملیں گی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولنا، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ تو چلیں سبق کا آغاز ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل ہم پر علم اور حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے رب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی علیک واصحابک یا نور اللہ، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ مدنی قاعدے سے سبق نمبر 19 زائد الف۔ یہ الف ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا گول ریڈ کلر کا نشان ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک میں کسی بھی جگہ پر الف کے اوپر یہ نشان آ جائے گا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ زائد الف ہے۔ تو چلیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا کرنا ہے ہم نے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے۔ جب ہم رک جائیں گے، یہ آ گیا، یہاں پر ہم نے سانس اپنا توڑ دیا، یہاں پر اگر ہم رکے تو اس صورت میں ہم نے اس الف کو پڑھنا ہے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم اس پہ رک نہیں رہے، اس کے ساتھ اگلے لفظ کو ملا رہے ہیں تو اس صورت میں اس کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ یہ 6 کلمات ہیں، ان کے اوپر یہ الف کے اوپر گول دائرہ لگا ہوا ہے، یہ نیچے صورتوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کے نیچے سورۃ احزاب پارہ نمبر 22، یہ پارہ نمبر 22 سورۃ احزاب، یہ یہ لفظ ان قرآن پاک میں یہ سورۃ احزاب میں ہے، پارہ نمبر 22 میں یہ صورتوں کے نام لکھے ہوئے نیچے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کیسے پڑھنا ہے۔ جب ہم اس پر وقف کریں گے تو اس صورت میں ہم نے الف مدا کرنا ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس الف کو نہیں پڑھنا، جیسے لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن نون الف زبر نا، لیکن نا، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ یہ الف مدہ اس صورت میں ہوگا جب ہم رک جائیں گے، اپنا سانس توڑ دیں گے۔ اگر ہم رکیں گے نہیں تو اس الف کو لیکن لا کو لمبا کریں گے، لیکن، تو پھر اس صورت میں اس طرح پڑھیں گے۔ اگر رکے تو پھر لیکن، آگے حمزہ ذو زبر از، ذو پیش زو، ازو نون واو پیش نو، الظنو، الظنو۔ اگر رکیں گے تو پھر نون الف زبر نا، الظنون، ذو کو موٹا، وو مدہ، وو سے پہلے پیش ہے تو وو مدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کریں گے اس صورت میں جب ہم رک جائیں گے۔ الظنون، جب اگر رکیں گے نہیں تو الظنون، الظنون، نون زبر نا، پھر حمزہ را زبر اور، را کو موٹا، را زبر را، الرا سین واو پیش سو، الرسو لام الف زبر لا، الرسولا، اگر نہیں رکیں گے تو الرسولا، السبیلا، السبیلا، سین کی سیٹی
या मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा, अस्सबीला। अगर रुके तो ला, अगर नहीं रुकेंगे तो अस्सबीला। कवा, काफ को मोटा, दो नुक्तों वाला काफ है। कवारीरो, कवारीरो। अगर रुकेंगे नहीं तो कवारीरा, कवारीरा। रा ज़बर रा। आना, हमज़ा ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, आना, आना। हमज़ा ज़बर आ, जायद अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, नून ज़बर ना, आना। नंबर 2 पे कुरान पाक के इस एक कलमे सलासीला, सीन ज़बर सा, लाम खड़ा ज़बर ला, सला, सीन ज़ेर सी, सलासी, लाम अलिफ ज़बर ला, सलासीला। ये आगे पारा नंबर 29 में है कि जायद अलिफ को वक्फ में पढ़ने और ना पढ़ने दोनों जायज़ हैं। अगर ये वक्फ करेंगे तब भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो तब भी पढ़ सकते हैं। ये एक लफ्ज़ ऐसा है कि इसको पढ़ने और ना पढ़ना दोनों तरह से जायज़ है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो तब भी जायज़ है, कोई इसमें मसला नहीं है। अगर पढ़ लेंगे तो तब भी इसमें कोई मसला नहीं है, दोनों तरीके से ये जायज़ है। अलबत्ता वसल में इस जायद अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जब करेंगे वसल मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर नहीं पढ़ा जाएगा। अगर जब मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने और ना पढ़ने दोनों तरह से जायज़ है। लेकिन जब हम इसको दूसरे लफ्ज़ के साथ मिला लेंगे, सांस नहीं तोड़ेंगे, तो फिर इसको नहीं पढ़ेंगे, किसी सूरत में भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक, सलासीला। और अगर जब मिलाकर पढ़ेंगे सॉरी जब अलिफ के साथ पढ़ेंगे तो सलासीला, फिर अलिफ मदा हो जाएगा। आगे नंबर 3 पे इन तमाम कलामात में ज़ायद अलिफ को वसलन, वसलन का मतलब होता है मिलाकर पढ़ने में, पढ़ने की सूरत में, और वक्फन जब हम वक्फ करेंगे रुक जाएंगे यानी रुकने की सूरत में, दोनों एतबार से नहीं पढ़ेंगे। ये नीचे ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे कलमात हैं कि इनको जब हम वसल करेंगे तब भी नहीं पढ़ेंगे और जब वक्फ करेंगे तो इन दोनों सूरतों में नहीं पढ़ेंगे। ये ऊपर वाले जो आपको सबसे पहले नंबर पे बताए हैं ये वो अल्फाज थे। अगर जब हम इन पे रुक जाएंगे तो इनको पढ़ेंगे, अगर नहीं रुकेंगे, सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जब नहीं रुकेंगे तो फिर इनको नहीं पढ़ेंगे। मिलाकर पढ़ते वक्त जायद अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। और ये सलासिला जो लफ्ज़ था इस पे हम अगर रुक जाएं तब भी पढ़ सकते हैं, जब रुक जाएंगे तो पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते। लेकिन जब हम वसल करेंगे मिलाकर पढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, सांस नहीं तोड़ेंगे, तो फिर इस सूरत में इसको हर हालत नहीं पढ़ा जाएगा। और ये नीचे जो कलमात दिए गए हैं इनको रुकने की सूरत में भी और ना रुकने की सूरत में भी हर हालत में जायद अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। आपने ये अल्फाज याद कर लेने हैं या आपने पारे नंबर पर अपने निशान लगा लेने हैं। वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कौन से हरूफ के ऊपर जायद अलिफ है और इनको पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। ये 6 लफ्ज़ हैं और ये एक लफ्ज़ है, ये जो नीचे है इनमें जायद अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। और इनमें हर कलमात के नीचे इनका पारा नंबर का ये इसका सूरत नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखें, ये पारा नंबर 4 है और अल इमरान ये सूरत का नाम है, ये सूरत अनबिया, ये अल इमरान, ये सब की ये पारा नंबर 23 है। ये सब के नीचे सूरतों के नाम और पारा नंबर लिखा हुआ है। आप जाकर कुरान पाक में इनको देख सकते हैं। इनको कैसे पढ़ना है? हमज़ा ज़बर आ, फ़ा ज़बर फ़ा, आफ़ा। इसका जायद अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, आफ़ा। हमज़ा, नून, मीम, ज़ेर, इम, आफ़ा इम, माता, मीम अलिफ ज़बर मा, ता ज़बर ता, आफ़ा इम माता। इसका जायद अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा। आफ़ा इम, हमज़ा ज़बर आ, फ़ा ज़बर फ़ा, आफ़ा। हमज़ा, नून, मीम, ज़ेर, इम, आफ़ा इम, मित्ता, मीम, ता, ज़ेर, मित्ता ज़बर ता, मीम के ऊपर गुन्ना, आफ़ा इम मित्ता, इम मित्ता। लाम ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, लाई, लाम, लाम ज़बर लाल। मैंने आपको बताया था कि लफ्ज़ लाम, अल्लाह का जो लाम है उससे पहले अगर ज़बर आ जाए तो अल्लाह मोटा पढ़ा जाएगा। ला इल्लल्लाही, ला इल्लल्लाही, अल्लाह के ऊपर खड़ा मादा एक अलिफ के बराबर खींचना है। लाम के आगे अलिफ जायद अलिफ है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। ला
इलल्लाहि। इसी तरह ला इलल जहीमी, ला इलल, हमजा जेर ई, लाम लाम जबर लल, इलल जीम जबर जा, इलल जा हा या जेर ही, इलल जही मीम जेर मी, ला इलल जहीमी, लाम जेर ली शीन या जबर शई, ली शई हमजा दो जेर इन, ली शई इन, ली शई इन, लिशा ऐसे नहीं किया, शई अलिफ जायद अलिफ नहीं पढ़ा, ली शई इन, मला मीम जबर मा, लाम जबर ला, मला हमजा जेर ई, मला ई हा खड़ा जेर ही, मला ई ही, हमजा नून जबर अन, ता ता बा, हमजा नून जबर अन, ता जबर ता, अंता, नून साकिन के बाद ता आ गया तो नून पे गुना, अंता, बा वाऊ पेश बू, अंता बू, हमजा जबर आ, अंता बू आ, वाऊ साकिन से पहले पेश आ गया तो वाऊ मदा, अंता बू आ, वाला वाऊ जबर वा, लाम जबर ला, वाला आउ, हमजा वाऊ जबर आउ, वाला आउ, दौद जबर दा, वाला आउ दा, आइन वाऊ पेश ऊ, वाला आउ दा ऊ, वाला आउ, वाऊ साकिन से पहले अलिफ आ रहा है तो लीन हो रहा है, वाऊ लीन, वाला आउ, दौद जबर दा, वाला आउ दा, आइन वाऊ पेश ऊ, वाला आउ दा ऊ, इधर वहू मदा हो रहा है, वहू साकिन से पहले पेश आ रही है तो वहू मदा, इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है, जायद अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, वाला। इसी तरह आगे ला लाम जबर ला, ला हमजा जाल जबर अज, ला अज, बा जबर बा, ला अज बा, हा नून जबर हन, ला अज बहन, नून जबर ना, ला अज बहन, हा उल्टा पेश हू, ला, यहाँ पर जायद अलिफ है, वैसे तो अगर अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो फिर हम पढ़ते हैं ला, लेकिन यहाँ पर ला नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि अलिफ के ऊपर ये छोटा सा गोल निशान है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जायद अलिफ है, इस पर हमने मदा नहीं करना। ला अज़बहन्ना, नून के ऊपर तशदीद है, नून के ऊपर गुन्ना होगा, बहन्ना, हा के ऊपर उल्टा पेश है तो हा को एक अलिफ के बराबर खींचना है, अज़बहन्नहू। आगे ला, देखिए वैसे तो हमने मदा करना था ला, लेकिन हम समझिए कि इसके ऊपर गोल है तो हमने इसको लाम जबर ला, ला हमजा नून जबर अन, ला अन, ता मीम पेश तुम, ला अन तुम, ला अन तुम, नून के बाद तार है तो यहाँ पर हमने गुना करना है, अन तुम, मीम नून, नून जेर मिन, नून जबर ना, मिन ना, बा जबर बा, मिन नबा, हमजा जेर ई, मिन नबाई, मिन नबाई, वमला, वाऊ जबर वा, मीम जबर मा, वमा, लाम जबर ला, वमला, हमजा जेर ई, वमलाई, वमलाई, ला नहीं करना, वमलाई, हा मीम जेर हिम, वमलाइहिम, वमला हमजा जेर ई, वमलाइहिम, सा जबर सा, मीम वाऊ पेश मू, सामू, दाल जबर दा, सा को नरमी से पढ़ना है, वाऊ के ऊपर वाऊ साकिन है, उससे पहले पेश आ रही है तो वाऊ मदा, सामूदा, सामूदा, जायद अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ली तत, ता ता जबर तत, लाम जेर ली, ली तत, ली तत, लाम पेश लू, ली तत लू, वाऊ जबर वा, ली तत लुआ, ली तत लुआ, वैसे तो वा अलिफ आर पढ़ना होता तो वाह होता, तो यहाँ पर जायद अलिफ आ गया, ली तत लुआ।
इसी तरह आगे लाम नून नून ज़बर लन, नून दाल ज़बर नद लन नद, ऐन पेश उ वाउ ज़बर वा लन नदउवा, लन नदउवा, ज़ेर ली या रा ज़बर यर लियर, बा पेश बू लियरबू, वाउ ज़बर वा लियरबुवा, फा या ज़ेर फी लियरबुवा फी लियरबुवा, वाउ ज़बर वा लियरबुवा फी। यहाँ पर या मदा कर दिया, या साकिन से पहले ज़ेर आ रही थी तो फी ज़ाइद अलिफ नहीं पड़ा, लियरबुवा लियरबुवा फी। लाम ज़ेर ली या बा ज़बर यब लियब लियब, लाम पेश लू लियबलू, वाउ ज़बर वा लियबलुवा लियबलुवा, वाउ ज़बर वा, नून बा ज़बर नब वनब वनब, लाम पेश लू वनबलू, वाउ ज़बर वा वनबलुवा, बा का कलकला वनबलुवा लुवा, लाम पेश लू वाउ ज़बर वा वनबलुवा, क़ाफ ज़बर क़ काफ मोटा क़, वाउ अलिफ ज़बर वा क़वा, रा ज़ेर री क़वारी, रा ज़बर रा क़वारीरा क़वारीरा, काफ को मोटा पड़ा। यहाँ पर अलिफ ज़ायद नहीं था, इसके ऊपर निशान नहीं था गोल, तो अलिफ के ऊपर हमने अलिफ मदा किया, अलिफ से पहले ज़बर था तो क़वा, अलिफ एक अलिफ के बराबर खींचा, आगे या मदा हो रहा था, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मदा होता है। यहाँ पर भी हमने एक अलिफ के बराबर इसको खींचा, रुफ़े मदा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचे, क़वारी, आगे ज़ायद अलिफ था तो रा ज़बर रा कर दिया, रा को हमने पढ़ना पुर है, मोटा है, रा के ऊपर ज़बर है, क़वारीरो क़वारीरो। नंबर 4 पर इन तमाम कलमात के लफ्ज़ आना, हमजा ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, आना में ज़ायद अलिफ नहीं है, लिहाजा इस अलिफ को पढ़ेंगे। ये देखिए इनके ऊपर गोल निशान भी नहीं है, तो यहाँ पर हमने इन अलिफ को पढ़ना है। वैसे तो आना कहीं भी लिखा हुआ आ जाए तो जब ज़ायद अलिफ आ जाए तो हमजा ज़बर आ नून ज़बर ना आना पढ़ेंगे, आना नहीं करेंगे। लेकिन ये जो लफ्ज़ हैं इनको हमने अलिफ जो है वो पढ़ना है, ये ज़ायद अलिफ नहीं है। अलैकुमुल अनामिला, अलैकुमुल अनामिला, यहाँ पे आना नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ मदा करना है, आना आना सिया, सी या जे सी या ज़बर या सिया, आना सिया, आना बू, वाउ साकिन से पहले पेश है तो मदा भी है वाउ के ऊपर, तो इसको हमने खींचा, आना नून के हमने अलिफ मदा किया, अलिफ से पहले ज़बर था तो अलिफ मदा, आना आना बू, लिल अनामी, लिल अनामी, मन मीम नून ज़बर मन, नून साकिन के बाद हमज़ा हलक वाला हरूफ आ गया, तो यहाँ पे जो है वो गुना नहीं करना, मन अनाबा, मन अनाबा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा यह सबक भी कंप्लीट हो गया। सबक नंबर 19 हमने आज कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह कल हम सबक नंबर 20 पढ़ेंगे, तो 1-2 सबक के बाद हमारा कुरान पाक स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द हम कुरान पाक अच्छे तरीके से सीख जाएं। अगर आपने मेरे साथ तावन किया तो इंशाल्लाह हम कुरान पाक पढ़ना इंशाल्लाह जल्द सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले इसका इख्तिताम दुआ के साथ करते हैं, ताकि हमने जो पढ़ा वो देर तक हमारे ज़हन में रहे, और अगर हमने कोई गलती कर ली हो पढ़ने के दौरान तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला वो गलतियाँ हमारी माफ़ फरमा दें। तो चलें दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह।
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔